Our guest today is a household name. Everybody wants to try his dish. He has taken Mangalore cuisine to the next level. Today we have with us someone who is as ordinary as you and me, yet extraordinary because of his hard work and passion. Coming from a humble family in Mangalore, he started cooking as a young boy and faced numerous challenges to reach his dream stage. Unfortunately, he couldn't make it for the first time, but he didn't give up and tried again. This time, he emerged as a winner, MasterChef Mohammed Ashiq. Let us talk to Ashiq to know more about him and his journey. So thank you so much, sir, for doing this with us. It's a great pleasure to have you. And so you have started from a very humble background, right? You had a very humble upbringing in Mangalore. And so can you tell us what was your journey like here from, Mohammed Ashiq to becoming MasterChef Mohammed Ashiq? If you could walk us through that, what was that like? Yeah, so when I was small, so I'm very much interested in cooking actually. So I used to play with my sister's kitchen toys. So I used to play with her. Like धीरे धीरे मैंने ऐसे ही कुकिंग के बारे में बहुत कुछ ऐसा बहुत कुछ ऐसा सीखने को बहुत मिला है. And my granny, she's very good cook, and I used to help her in the kitchen, and ऐसे धीरे धीरे मैंने सीखा है कुकिंग के बारे में and all. So after that, when I was in 10th, no, not 10th, 8th standard, I started cooking, like नॉर्मल कुकिंग करना चालू किया. जब भी मैं कॉलेज सब जा रहा था, आई यूज्ड टू प्रिपेयर समथिंग फॉर माय फ्रेंड्स, एंड उन लोग टेस्ट करके मुझे बहुत ऐसा बोल रहा था लाइक वाओ यू कुक सो अमेजिंग, बहुत अच्छा खाना बनाता है. सो आई थिंक फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड माय जर्नी. लाइक जब भी मैं इफ आई डू समथिंग विद माय इन माय होम, सो माय पेरेंट्स इज टू अप्रिशिएट मी लाइक वाओ इट्स बिकम वेरी गुड, लाइक बहुत अच्छे से आया. लाइक दे यूज्ड टू मोटिवेट मी. वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया. धीरे धीरे मैं कुकिंग के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया. सो लाइक आई वाज लाइक मुझे बहुत मन था लाइक आई हैव टू स्टडी लाइक अबाउट क्विजिन्स और लाइक होटल मैनेजमेंट के बारे में और भी जानना था. और मेरा जो पैशन है कुकिंग को बहुत आगे तक लेके जाना था, तो सब मुझे बहुत मन था. बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम इट कुडंट go forward. So but I never give up. So but still I used to think no matter what I have to do something in Mangalore, or like because I wanted to settle in India only, because I don't want to go abroad. So in my family, there are many people, those who work in Saudi, Dubai and all. So they used to call my mom and they used to tell like, oh, aapka beta ko bolo like to go Saudi, like he get a good opportunity because he knows cooking and all. So I used to my mom used to tell me like you can go to Dubai or Saudi, like you can earn. So I used to explain my mom, because see, if I work under any restaurant, anyhow, like it's a 5-star or 4-star, no matter. So if I work under the big restaurant, तो मुझे सिर्फ जो मेन्यू में है वही खाना बना के उन लोग को सर्व करना पड़ेगा. So मेरा जो पैशन है, जो मुझे ट्राई करना है नया क्विज़िन के बारे में, और मुझे पढ़ना है और मुझे ट्राई करके रिसर्च करना है, वो सब मुझे नहीं मिलता. So मेरा एक सपना था like I have to open something my own and where people can try my food, और मेरे पैशन को बहुत आगे तक लेके जाना है. So वहाँ से हो गया धीरे धीरे, like in my life ups and downs आ गया. So last year I have given my audition for MasterChef season 7 पे. Yeah. So I reached till top 40. I give many auditions in Bombay, Bangalore, Hyderabad and all. So after that I reached till top 40. Top 40. So after that, unfortunately I couldn't go forward. So then I came back to Mangalore. I was started thinking like, what's wrong with me? Like, is there any wrong with my food, or kuch hua tha kya? So then after that, like 4 months, I was not talking to anyone. Like I was thinking about this only, MasterChef के बारे में सोच रहा था, because I badly wanted to go to MasterChef. क्योंकि मेरे पास एक I had an opportunity. It's a golden opportunity actually, MasterChef. That where I can prove myself. जो मेरा खाना है, जो मेरा passion है, उसको एक पहचान दिलाने का एक मौका था मेरा साथ. Yeah, like so वो stage gives you the recognition, chef का पूरा. Yes. So जो मुझे
पढ़ाई में नहीं दिया था, तो ये एक मौका था. So I started convincing my mom, and then like my parents, everybody started supporting me last year. Then after I came back to Bangalore, and like my mom was like, no, you can't go to MasterChef anymore. You better you go to Saudi or Dubai, anywhere, Okay, like the my backup family. plan. Yeah, backup plan. So like मुझे मन नहीं था, like because I started my own business. It's my step in. Actually, it's a juice stall. You guys Yeah. know that that's a Yeah. Kulki hub. So it's that is my step in actually. So मुझे कुछ start करने के लिए कुछ मतलब इतना invest नहीं था starting में. So when I was studying in 12th standard, I started doing some like छोटा मोटा काम भी कर रहा था. Like I used to do delivery, and I was worked in retail shop. I was going catering service. So जब भी मुझे छुट्टी मिलता था, like I used to save money. So because badly wanted to do something in India, I don't want to go to Dubai or like Any other किसी के place. under, yeah, any other place. Even I don't want to work under any job. So hey, मेरा सपना like journey start हो गया था. So when I started my juice shop, so everybody was like क्यों start किया, तुझे इतना cooking का passion है? Because जूस का स्टॉल क्यों किया? Because मैंने सेव किया 60,000 तक सेव किया when I was studying. सेव किया था, और वो जो 60,000 के मैंने छोटा सा एक कियोस्क बनाया. So मैंने उसको मतलब वो जो छोटा सा कियोस्क है ना, उसमें मैंने कॉलेजेस में और इवेंट्स में हर जगह पे मैं स्टॉल लगा के I used to sell my juice. So एक साल में एडवर्टाइज किया. After that it became famous because it's a very unique drink actually. Kulki means it's a Malayalam word. So chili, lemon सब डाल के tangy flavor, it's awesome. So raw mango का. So then after that 1 year I did all the promotions, like I used to go to the colleges and some events and all, like marriage event. So then people started asking like where is the outlet, कहाँ पे आप लोग का outlet कहाँ पे and all. So उसके बाद like next my aim was like I have to start something like big, like restaurant या cafe. So from this juice shop, I can earn some money. So then later I can invest for the like restaurant या cafe. हाँ, so it was a financial कि आता रहेगा. हाँ, क्योंकि मेरा डैड का जॉब भी चले गया था, so I need to handle all the family को, the responsibility बहुत था. After that my sister got married and उसका husband ने मुझे बहुत help किया. So his name is Ali. So after that he helped me, like financially help किया. उसके बाद मैंने एक शॉप खोला, कुल्की हब. तो उस टाइम में भी like everybody is like you can go to Saudi, यहाँ जा सकता है, like you have the talent, cooking का talent है, शेफ लोग को इतना सैलरी मिलता है, इतना सैलरी. So I told my mom, no, इस बार मेरा नहीं हुआ, next बार मैं जरूर जाऊंगा. And my mom was like, no, you can't go. Like she was not ready to send me actually. So then after that I promised her while I'm going to the first audition. It was in Bangalore, I know. I still remember that. And I told my mom like I'm going for a MasterChef audition. This is first and last audition. So इसमें मैं select नहीं हुआ तो I will never turn back to MasterChef. You will drop the plan. So, yeah, I promised her and I just came. So I gave many auditions actually. After that I called my mom and I informed mom मेरा selection हो गया. She was not that happy actually. She was like, okay, तुम गया ना, okay देखो. The day I got the नाम वाला apron, so मैंने holding पे रखा था, मुझे immediately नहीं मिला. So I was sitting in the one corner and I used to think my journey, like कहाँ से कहाँ आ गया. So I was like यहाँ आज मैं फिसल गया, मुझे apron नहीं मिला, then I need to go to abroad. You have to go, So, yeah, you have my to go to dream, Saudi. because मेरा एक सपना था, क्योंकि I wanted to do something, क्योंकि like मुझे वो जो पढ़ाई नहीं हुआ था लोग कुकिंग के बारे में, तो यहाँ एक चांस था, like this is a golden opportunity. The day I got the नाम वाला apron, so I called my mom and I promised मैं जरूर जीत के ही आएगा, this is my promise. And she was like, okay, let's see, तुम यहाँ तक गया ना, it's a big thing. So then like after that she started supporting me, थोड़ा support करना start किया. तो उस दिन मैंने वादा किया था जो कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रॉफी लेके जाऊंगा और मास्टर शेफ बन के ही जाऊंगा.
So जब मैं मैंगलोर में आया था, Yeah. मोहम्मद आशिक बोल के आया था। जब मैं बॉम्बे से हाँ. मास्टर शेफ जीत के मैंगलोर गया, सारे लोग मुझे मास्टर शेफ मोहम्मद अच्छा. आशिक बोल के हाँ. बुला रहे हैं। That I earned it finally. Yeah, So this I is mean, my journey. हाँ, okay, so I have a lot of things to ask you. पहले आपने जैसे बताया कि एज अ चाइल्ड आप अपनी बहनों के किचन टॉयज और वो सब के साथ खेलते थे. Now, even in today India में patriarchal society में usually not every male is supported when they cook Yes, or when they play, and that's a huge problem where people have yes. spoken about this later. So what do you have to say about it? And you mentioned that your parents were supportive towards your cooking, Yeah. but how तो was that like? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक एवरीबडी दे डोंट गेट दिस सपोर्ट। तो सब लोग को सपोर्ट नहीं मिलता है। देखो, एक बार मुझे भी एक सपोर्ट था, एक मोमेंट मुझे सपोर्ट भी नहीं था, बट मैंने कभी भी हार नहीं माना है। सो मैंने मेरे पैशन को कभी भी मैं क्विट नहीं किया है। तो सबके एक ये रहता है, लाइक उनका एक पैशन रहता है। सो एक एक लड़का लोग का जो मेहंदी आर्टिस्ट भी रहता है, लाइक आई हैव सीन मेनी पीपल। Yeah. सो उनके एक पैशन रहता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज सपोर्ट करो, क्योंकि जब मैं कॉलेज में, लाइक दिस इज जब मैं कॉलेज जा रहा था, मुझे पढ़ने को कुछ भी शौक नहीं है। लाइक आई एम लाइक मैं कुकिंग जो भी है, Yeah. लाइक असाइनमेंट हो कुछ भी हो, मैं कुकिंग करता था। कुकिंग हम्म. करके कुछ खाना खा रहा था। माय मॉम वाज लाइक, अरे यार तुझे असाइनमेंट है वो पढ़ो और तू कुकिंग कर रहा है। तो मेरा एक पैशन था कुकिंग करने का, बट मुझे वो पढ़ाई भी करने को नहीं हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो भी है, लाइक उनका जो पैशन रहता है सपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक उस टाइम उन लोग एक लेवल तक रीच हो सकता है। तो मेरा लाइफ में भी एक टाइम सपोर्ट था, एक टाइम सपोर्ट नहीं था। तो यू एवरीवन नो दिस स्टोरी। सो बट मैं कभी भी मैंने क्विट नहीं किया मेरा पैशन को, मैंने वो करके दिखाया है। तो अभी देखो कितना एक फेम मिला है, लाइक सेलिब्रिटी वाइफ मिल रहा है आफ्टर विनिंग द मास्टर शेफ। तो ये Yeah. हमने लाइक मुश्किल से अर्न किया है, लाइक कमाया है। कमाने के लिए भी बहुत मुश्किल है। सो मैं वही बोल रहा सब पेरेंट्स को, दे नीड टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रंस। लाइक नहीं, बहुत कुछ स्टोरी भी मैंने सुना है लाइक कुकिंग के बारे में। बहुत लोग को कुकिंग करने का मन है, लाइक देयर पेरेंट्स आर नॉट सपोर्ट। तो Yeah, they don't allow या to take दे them as विल a career. या दे विल नॉट सपोर्ट। बट क्या है ना, Yeah. कुकिंग में भी बहुत कैरियर है एक्चुअली। कितना लाइक मेरा घर पे क्यों ये था, क्योंकि लोग जब मैंने मास्टर शेफ लास्ट सीजन में ऑडिशन नहीं हुआ था मेरा, तो लाइक लोग है ना मेरा मम्मी से बोल रहा था क्योंकि वो मास्टर शेफ इज फेक, उधर कुछ नहीं होता है, उधर यहाँ ऐसे लोग को नहीं लेता है, ऐसे सेलिब्रिटी लोग को लेता है। वो सारी चीज़ ऐसा लोग मेरा मम्मी से बोला है। माय मॉम वाज लाइक, हाँ शायद वैसे हो सकता है, या इन्होंने यहाँ तक गया उसका नहीं हुआ। तो मेरा मम्मी से बोला, नहीं मम्मी, इतने लाखों लोग रहता है, इसमें से टॉप 12 या टॉप 16 लेने का एक मतलब इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली। Yeah, तो because इतना crores of आसान people नहीं है। participate इट्स नॉट in that. इजी, इट्स Yeah. नॉट इजी। तो बट मैं क्या बोला, मेरे अंदर वो जो जुनून था, तो मैंने करके दिखाया। तो आई थिंक दिस इज अ एग्जांपल फॉर मेनी पीपल। आई थिंक सब लोग सपोर्ट करना है, तो उनका पेरेंट्स लोग जो भी है, लाइक इट्स अबाउट कुकिंग या एनीथिंग। तो जब उन लोग एक लेवल तक पहुंच सकता है आई एम सॉरी माय हिंदी आई थिंक I learned my Hindi in MasterChef only. Even one more thing I forgot to tell. Yeah, please. When I went last time in audition, literally मुझे हिंदी इतना ही नहीं आता, because I'm from South, you know, South का Yeah. accents कैसे Yeah. होता है। So literally मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, like when I placed my dish in front of the judges, and I couldn't even explain properly. I was shivering. Chef Vikas, Chef Garima was there, Chef Ranveer was there. उन लोग को देख के ना मैं इतना डर गया था। तो then after that मैं सोचा, नहीं, I have to learn, like I have to improve my Hindi only. So I think in 8 to 1 year में मैंने ना इतना हिंदी सीखा। So I think Now you're I'm very fluent. proud of अभी आप myself, ठीक से क्योंकि बोल रहे हो मैं सब give कुछ. up नहीं किया है। क्योंकि एक मैसेज सब लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप लोग का पैशन है, कभी भी गिव अप मत करो। मुश्किल है तो अप्स एंड डाउन्स रहता है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ झेला है, बहुत गिरने का भी है, बट फिर भी आपको जो पैशन है ना उसको स्टिक रखना है, तो यू नीड टू गो फॉरवर्ड। Can you tell us what was the first dish that you made, as a boy, like once you started cooking properly, the first dish that you had made in your home or that? Like I used to make this thing, what is it? Yeah, pudding.
Okay. In desert, I used to make a pudding a lot. People love my pudding in Bangalore. So Uh, yeah, even one more thing is that because we like ये pudding का पीछे एक राज भी है. So oh, yeah, क्या राज है? so We would love to मैं know. बताऊंगा. Yeah. So after my 12th, so I started the kulki kiosk, right? Like I Hmm. told you. Yeah, the So juice. जब Yeah. मेरा that time my father lost his job. तो मैंने घर पे ही खाना बना के like I used to sell जो पुडिंग्स एक कंटेनर में डाल के, so I used to Hmm. charge for 40 rupees for one bowl. So Hmm. वेडिंग फंक्शन के लिए और बर्थडे पार्टीज के लिए ऐसा लाइक 500,000 ऐसा बल्क ऑर्डर्स ले रहा था, एंड स्नैक्स भी. सो लाइक इवनिंग स्नैक्स वो सब फ्रोजन बना के फ्रिज में Hmm. रख के तो वो भी सेल कर रहा था मैंने. लाइक आई स्ट्रगल अ लॉट, बहुत है. Yeah. Yeah. सो उस टाइम So. मैंने ज्यादा ही Hmm. फोकस कर रहा था कुकिंग के बारे में. लाइक मुझे आई लाइक whatever, if I want, if I wanted to do something new, innovative or something, so मैं वहाँ से ही शुरू कर रहा था, लाइक किचन पे ही बना के, हाँ. और मैं मेरा कस्टमर्स को भी सर्व कर रहा था. सो लाइक उधर से मैं अभी यहाँ तक आ गया है. तो So, जैसे आपने बोला उधर से तो पुडिंग से लेके आपकी फिनाले डिश तक, हाउ वाज द जर्नी एंड व्हाट वाज योर स्टोरी? व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ द फिनाले डिश? Okay, so the reason why I made that ocean view, the finale dish name was the ocean view. So when I came to the first audition, I bought seafood. So I belongs to Mangalore, obviously. यहाँ Yeah. पे जो seafood बहुत See, सारे yeah. varieties मिलता है, वो मेरा एक पहचान है. So जब मैं टीवी पे देख रहा था, सब लोग जब पहले मैं ऑडिशन सब देख रहा था, पहले मास्टर शेफ देख रहा था, सारे लोग है ना जो उनका जो स्टेट का खाने को रिप्रेजेंट कर रहा था. लाइक देयर आर मेनी पीपल फ्रॉम पंजाब और हिमाचल, मेघालय, और सब लोग था अलग अलग सिटी से, स्टेट से, अलग अलग स्टेट से लोग था. तो जब मैं टीवी में देख रहा था, मैंने भी सोच रहा था, लो आई हैव टू गो टू लाइक मास्टर शेफ, वन डे आई विल गो, आई वांट टू रिप्रेजेंट माय मैंगलोरियन क्विजिन. और लाइक मुझे एक प्राउड फील करना है मैंगलोरियन क्विजिन को. तो वो सारे चीज मेरे दिमाग में था. तो most of the time, like most of the day, I used seafood only in that kitchen. So वो मेरा comfort है. तो जब मैंने last dish बनाया था ओशन व्यू, वो एक मेरा पहचान था. जो भी वो डिश दे के बोलना तो वो मोहम्मद आशिक का डिश है. एक इनोवेटिव था. इवन शेफ रणवीर ने भी बोला आपने वो डिश को क्रिएट किया. तो फॉर एग्जाम्पल मीन्स लाइक कभी एक डिश रहता है लाइक राज कचौरी. राज कचौरी हम उसको एक 10 लाइक न्यू डिश बना सकते हो उसमें राज कचौरी को. तो जो फिनाले का डिश मैंने खुद इन्वेंट किया था. लाइक फोम के लिए, लाइक जो वाटर का जो टच देने के लिए फोम बनाया है, और जो फोम ब्लू होने के लिए उसमें ब्लू भी कलर यूज किया है फ्लावर का. तो सैंड के लिए मैंने प्रॉन्स का पुडी बनाया. वो सारे मैंने इन्वेंट किया है. तो बहुत इम्प्रेस हो गया था शेफ लोग. तो सी फूड लाइक जब मैं आया था तो सी फूड लेके आया. जब मैं लास्ट किचन में कुकिंग कर रहा हूँ उस दिन भी मैंने सी फूड करके गए थे. या सी फूड ही रिप्रेजेंट करके जाने का प्लान था. तो सक्सेस हो गया. Congratulations on that, clearly. Thank you And so can you tell much. us, जब आप ये जीते, when your name was announced that you are the winner, आपको कैसा लगा? And when you came to Mangalore, आप जब Mangalore airport पे पहुंचे थे, तो I think hundreds of people were there to greet you and Not to celebrate you. 100. Thousands. Oh my god. Tell us about that. How was that? Like finally feeling like a Okay. celebrity. Okay, I'll tell you. तो जब जीता था तो मेरा जो सपना था लाइक मास्टर शेफ बनने का, एक शेफ होने का, तो पूरा हो गया. तो आई वाज इन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली. तो जैसे मैं मैंगलोरियन क्विजिन को रिप्रेजेंट किया हर बार, मैंगलोरियन क्विजिन, तो पीपल यूज्ड टू स्टार्ट लविंग मी. तो कर्नाटक के जो लोग हैं, तो जब भी मेरा एक सपना था, कोई भी कर्नाटक से अभी तक जीता नहीं, लेकिन कुछ भी करके इस बार कर्नाटक को जीतना है और मुझे एक प्राउड फील करना है. जो पैसा आज जाता है कल जाता है, लाइक एक पहचान रहता है ना, जो मेहनत से कमाया हुआ पहचान, तो वो मुझे चाहिए था.
तो मैं बहुत फोकस किया उस पे। और जब मैं एयरपोर्ट में आ गया तो आई डिडंट नो एनीथिंग एक्चुअली। तो जब मैं फ्लाइट के उतारा, फ्लाइट में भी मुझे बहुत सारे लाइक केक कटिंग सब किया था। और जब मैं बाहर आके वेलकम कर रहा मैं आई वाज लाइक सरप्राइज, ये क्या हो गया। जब मैं बाहर आ रहा हूँ, आई थिंक मोर देन 500 पीपल वर देयर। 500 सिर्फ 500 लोग था एयरपोर्ट पे। तो बैंड सब था, बैंड वगैरह सब था। एक चंडा बोल के आता है मैंगलोर पे, एक साउंड, वो सारे चीज रेडी था। एंड मुझे इतना फूल का हार डाला है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। तो आई वाज वेरी सरप्राइज। जो वहां से रैली स्टार्ट हो गया, तो एयरपोर्ट से मेरा घर तक एक 40 मिनट्स है। वहां से सीधा से वहां से सीधा एयरपोर्ट से लेके गया। और हमारा जो मैंगलोर में एक मॉल है, फोरम मॉल, वो तो मैंगलोर सिटी पे रहता है। तो वहाँ एक बाहर बहुत जगह, मतलब बाहर बहुत स्पेस है। तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, मुझे सीधा लेके जाके उधर जा रहा है। तो जब मैं एक दिन पहले उठ के देख रहा हूँ, मेरे एक पोस्टर लगाया है मैंगलोर, मतलब सब इंस्टाग्राम में पूरा वायरल हो रहा है, लाइक आशिक इज कमिंग टू एयरपोर्ट 2 o'clock, आफ्टर दैट 4 o'clock इज कमिंग टू फोरम मॉल, फैंस लोग को मिलना है तो मिल लो। तो आई थॉट ओके, एक 500 लोग होगा। जैसे मैं फॉरन मॉल गया, ओ माय गॉड, आई थिंक सारे न्यूज पे आया है मोर देन 5,000। आई शो यू द वीडियो, एंड more than 5,000 people are like, oh my god, मुझे इतना वेट कर रहा था लाइक फोटोज लेने के लिए। आई विश आई कुड टेक सेल्फी विद एवरीवन, बट अनफॉर्चुनेटली तो इतना भीड़ था, इतना भीड़। एंड मतलब सारी न्यूज में भी आया, मतलब मैंगलोर में आया फर्स्ट टाइम, मैंगलोर का हिस्ट्री में इतना क्राउड वेलकम के लिए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, इवन दे गिव द स्टेटमेंट इन न्यूज आल्सो, या इतना सेलिब्रिटीज आया है मैंगलोर में, बट इतना क्राउड अभी तक नहीं है। तो पहले बार लाइक हिस्ट्री में, मैंगलोर के हिस्ट्री में इतना क्राउड। सो वो सब देख के है ना, ओ माय गॉड। इवन एयरपोर्ट लोग भी स्टेटमेंट दिया था न्यूज लोग के लिए, लाइक पहले बार एयरपोर्ट में ऐसा ग्रैंड वेलकम हुआ है। तो सब सुन के मुझे इतना प्यार मिला है। तो नाम कमाने के बहुत मुश्किल है, और फैंस कमाने के लिए उससे भी बहुत मुश्किल है। बट मैंने दो भी हासिल किया, मेरे प्यार से और मेरा मेहनत से। Very glad. Also, you spoke about many things कि आपने जैसे मास्टर शेफ में, बिकॉज आपको वो होटल मैनेजमेंट कोर्स में जाने नहीं मिला, मास्टर शेफ में जाना चाहते थे टू लर्न द स्किल्स, द होल आर्ट ऑफ कुकिंग। एंड आपने जैसे बताया कि आप सीजन 7 से सीजन 8 पे आपने हिंदी भी सीखा, लाइक दैट वाज अ सॉफ्ट स्किल जो आपको डेवलप करना पड़ा टू प्रेजेंट योरसेल्फ। हाउ इम्पोर्टेंट वर दीज स्किल्स, और अब कितना जरूरी है कि आप कहीं पे भी जाए। एंड आई थिंक अभी भी, लाइक इवन आफ्टर टिल द फिनाले, यू वर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे ऑन द शो, लाइक इट वाज नेवर द एंड ऑफ कि हाँ आता है। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज लर्निंग हर चीजें। आप यंगस्टर्स को क्या बताना चाहोगे? तो मैं देखो, एक जो फूड है, एक शेफ को सारे क्विजिन पता नहीं चलता है, लाइक ऑब्वियसली इतने सारे स्टेट्स हैं। तो लाइक इफ आई एम फ्रॉम मैंगलोर, मुझे मैंगलोर के क्विजिन के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो उसे ये जब मैं मास्टर शेफ में गया, टॉप 12 अलग अलग स्टेट के लोग हैं, एक मेघालय से, एक कश्मीर से, थोड़ा बहुत आता है सब। एक शेफ को सारे क्विजिन के बारे में, सारे लाइक एक फूड भी उतना नॉलेज नहीं रहता। तो फूड कभी भी एंड नहीं होता फूड के बारे में। इफ इन केस इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट द फूड, इट विल नेवर एंड। तो बहुत सारे रहता है सीखने के लिए। तो मास्टर शेफ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, एंड मास्टर शेफ से मैं बहुत कुछ सीखा है। जजेस लोग भी हम लोग को बहुत कुछ टिप्स वगैरह सिखाया है। जब भी कुछ खाना बनाते हैं तो लाइक दे कम टू अ काउंटर एंड दे यूज्ड टू चेक, ओके इसमें थोड़ा ये बैलेंस कम है, वो बैलेंस ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ हम लोग को बहुत हेल्प हो रहा है। जजेस बोल रहा है ओके, तो हम उसको तो करेक्ट कर रहा था। तो बहुत कुछ सीखा है मैंने मास्टर शेफ से, जो मुझे कॉलेज में नहीं सीखने को एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला मुझे। तो मैं मास्टर शेफ में बहुत कुछ सीखा है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, लाइक जो भी है, so don't give up. But if you want to follow your passion, बहुत मुश्किल है, एक रीच होने के लिए बहुत मुश्किल है, because I faced all this thing. तो मैं वही बोल रहा, क्विट मत करो, don't give up yourself. टाइम होगा, थोड़ा और टाइम लेगा, बट इन द एंड ऑफ द डे
आपको उसका जो फल मिलेगा वो ज़्यादा। या ऑल्सो आपने जैसे भी क्यूजीन्स की बात की, सो नाउ एज अ शेफ इज फ्यूजन फूड पॉपुलर इन इंडिया? व्हाट इज योर ओपिनियन? द फ्यूजन क्या है, जब मैंने मास्टर शेफ में गया था तो नॉर्मल फूड बना रहा था मैंने। जब मैं मास्टर शेफ में गया इतने सारे फ्यूजन हम बना सकते हैं, इवन आई एम सरप्राइज, लाइक एक चीज से हम कितने सारे बना सकते हैं। जब हम लोग को मिस्ट्री बॉक्स चैलेंजेस मिल रहा था, लाइक एक इंग्रेडिएंट्स उसमें आप कुछ करो, लाइक मेरा एक लाइक मुझे भी बहुत सारे ऐसा चीजें मिला है, लाइक आई नेवर वर्क विद दैट। सो इन लाइक नायन ज्योति के साथ मैंने एक किया था। सो इट्स अकुने फर्मेंटेड बीन्स, तो यहाँ साउथ में नहीं मिलता है वो फर्मेंटेड बीन्स, वो नॉर्थ ईस्ट का इंग्रेडिएंट्स है वो। सो नॉर्थ में वो बहुत पॉपुलर है। सो मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया है, बट जब मैंने यूज किया आई थिंक हम लोग जो फ्लेवर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा किचन पे, जब मास्टर शेफ किचन पे नम्बी ने वो जो फर्मेंटेड बीन्स यूज किया था, वो जो फर्मेंटेड बीन्स है वो इतना फर्मेंट होता है ना, तो वो बहुत स्मेल रहता है। जब उसका कुकिंग प्रोसेस होने के बाद वो जो उमामी फ्लेवर्स रहता है, बट उसका स्मेल कंप्लीटली जाता है। तो आई थिंक जब मैं पहले बार देखा था आई वाज वंडरिंग ये क्या चीज है, इतना लाइक पूरा सारे किचन स्मेल आ रहा है। तो जब मुझे एक चैलेंजेस मिला व्हेन आई ट्राइड दैट पर्सनली, तो जब मैं उसको टेस्ट किया, समझा मैंने वो जो फ्लेवर्स को, देन उसके बाद मेरे दिमाग में गया हाँ, ये जो नॉर्थ का इंग्रेडिएंट्स है उसको मैं साउथ में कैसे लेके आ सकता है, साउथ क्विज़िन में कैसे मैंने फ्यूजन दे सकता है। जब मैंने उस दिन टेस्ट किया, तब से मेरा वो फेवरेट इंग्रेडिएंट्स हो गया। तो मतलब या इट्स वेरी गुड, बिकॉज मैं ऑलरेडी नंबी से बोला मुझे अपनी चाहिए कुछ कैसे भी करके, क्योंकि आई वांटेड टू ट्राई, क्योंकि वैसे बहुत सारे चीजें हम फ्लेवर्स को समझना वो जरूर है, क्योंकि जब हम फ्लेवर्स को समझ सकते हैं तब हम लोग को आगे जा सकता है, लाइक हाँ ओके पेयरिंग करना है और एक खटास को कैसे बैलेंस करना है, मिठास को कैसे बैलेंस करना है, सब। तो फ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Also, you have already said that you want to open a restaurant. That's your next plan after winning MasterChef. Can you tell us what would be the restaurant about? What would be cuisine? What would be its theme? What are your plans about it? So मेरा एक सपना है, like I wanted to start a business in Mangalore. Like I wanted to open a restaurant in Mangalore. So Bangalore, anywhere. But I wanted to open a restaurant in Bangalore, India. But in Mangalore also. So because where people can try my food. और देखो जब लोग इतना प्यार दे रहे हैं बाहर से, बिकॉज दे ट्रस्ट माई फूड, तो मेरे जो खाने के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट करके मुझे इतना फॉलो कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं, तो मुझे उन फैन को खिलाना है मेरा जो खाना और मेरा जो पैशन है खाने को। वो सारे जो भी मैंने सीखा है मास्टर शेफ में और बहुत कुछ सीखा है, वो सारे दिमाग लगा के मुझे मेरे रेस्टोरेंट में खोलना है, लाइक यूनिक टाइप को ओपन करना है मुझे रेस्टोरेंट। इट्स माय ड्रीम एक्चुअली। Okay. Are there any other plans? Are there any other plans apart from opening a restaurant? So far, वही प्लान है और कुछ नहीं। Okay. Super excited about it. Good luck for that. Thank you. Also, and you should visit. Yeah, please. Also, we have a small segment for you now. Basically, I'll just say a word and you can tell me the first word that comes to your mind. And it would be mostly related to your MasterChef journey itself. Okay? Okay. Yeah. So first is Chef Vikas Khanna. Very sweet. Chef Ranveer. Very humble. Okay. Chef Pooja. Oh. Cute. She's very cute actually. बहुत cute है. Chef Pooja is very cute. I like her smile. Oh, okay. And Nambi. Oh. Nambi Rocket. Oh, Nambi Rocket. She's amazing. बहुत strong है Nambi. क्योंकि वो दिखता है इतना छोटा, रॉकेट की तरह, लाइक रॉकेट के जैसे तेज जाता है वो, लाइक शी इज वेरी अमेजिंग, लाइक बहुत कुछ नॉलेज है उनके पास, लाइक हर हस्बैंड इज फ्रॉम साउथ, शी इज फ्रॉम नॉर्थ, तो जैसे उन्होंने साउथ और नॉर्थ को कैसे बैलेंस कर रहा था, एंड इवन केनी इज आल्सो रॉकेट ओनली इन दिस एज, ही इज रीचिंग टिल टॉप 8
it's a big Yeah. thing actually. I'm very proud of him because when I was 18 years, I don't think so मुझे इतना knowledge था, like basic था, but उसको भी बहुत कुछ knowledge है, but he reached till top 8 master chef. So I think That's it's a a big huge thing. achievement, it's a Yeah. big achievement. तो उनको like बहुत आगे तक जाएगा for sure, and he's also very amazing. Also, next is Rukhsar. रुखसार क्या बोलूं रुखसार वो भी बहुत अच्छी है, अब क्या वर्ड बोलूं. Or you can share an experience or anything. You know, if you have intern रुखसार that इज you चिल्ली, रुखसार इज Okay, चिल्ली, chili. क्योंकि क्या है ना, Okay. इतना तीखा है, मतलब वो दिखता नहीं है ना जैसे वो दिखता है, बट उसका जो फूड का नॉलेज है ना बहुत है, क्योंकि जो कश्मीरी क्विज़न जो मुझे भी बहुत कुछ पता नहीं है, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखा है. तो वो जो शी इज लाइक हॉट चिली हाँ बहुत And शी what इज about अमेजिंग. yeah? What about Suraj? So he's my roommate. सूरज को क्या Okay. बोलूं, बहुत कुछ है. Anything then. I think I need time. Yeah, it's okay. You can like the first word that comes, you can just say that. You know, crackle, pataka, Yeah. pataka, ta 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 ta. वो जब कुकिंग Yeah. करता है ना, it's like confused. क्या करना है मतलब. But even वो भी बहुत अच्छे से करता है, like dessert में. So I think most of the time he did savories, like after like उस मिडिल में, तो बाद में डेजर्ट सब करना चालू किया, तो उनके भी बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत सारे नॉलेज है उनके डेजर्ट में, तो या. And lastly, MasterChef, the whole show. What was any word for that? Word, sentence, anything? For MasterChef, okay. तो MasterChef is क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि आई थिंक MasterChef में मेरा जो जर्नी था, इट वाज अ रोलर कोस्टर, क्योंकि यू नो मैंने ही ज़्यादा ब्लैक एप्रन चैलेंजेस किया है, तो मुझे बहुत कुछ पता है, लाइक बहुत कुछ सीखने को मिला. जब भी मैं ब्लैक एप्रन चैलेंज जा रहा था, तो आई यूज्ड टू थिंक, अरे यार मैं आज कर जा रहा है, शायद मैं आज मेरा कुछ छोटा सा गलती हुआ, आई माइट गो होम टुडे. तो आफ्टर दैट 2-3 ब्लैक चैलेंजेस करने के बाद है ना, मुझे और भी स्ट्रांग लगा. आई थिंक जो मंडे टू थर्सडे का जो चैलेंज है, उससे डबल मुश्किल रहता है जो प्रेशर टेस्ट. तो जब मैं उसमें एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे सब इजी लगना चालू हुआ. मुझे नॉट इजी एक्चुअली, लाइक ओके, जो ब्लैक एप्रन चैलेंज कर सकता है, तो ये चैलेंज भी कर सकता हूँ. लाइक मुझे और भी मोटिवेशन मिल रहा था. बट द ब्लैक एप्रन चैलेंजेस, ओ माय गॉड. तो हर दिन मुझे जब सेट पे जा रहा है, तो आई डोंट नो, ऐसे ही फील आ रहा था, लाइक टुडे आई विल गो होम. तो बट फाइनली तो ट्रॉफी लेके आ गया. So but thank you so much for the MasterChef, because MasterChef has given me many things. So I learned many things in MasterChef जो मुझे बाहर से सीखने को नहीं मिला. और MasterChef से जो जजेस लोग भी हैं, उन लोग भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी बहुत सिखाया है उन लोग. So and जो हमारा टॉप 12 कंटेस्टेंट भी है, and is I don't know about the other season, but this season का top 12 is amazing, क्योंकि हम एक दूसरे से इतना मिलके, लाइक जब भी हम हमारा सेट पे खत्म होता है, जब भी हम रूम पे जाता हूँ, तो लाइक हम सारे लोग इकट्ठा करके लाइक हॉल पे बैठता हूँ, लाइक कुछ भी है, कुछ डाउट है, हम लोग शेयर करता हूँ. कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटर ऐसा नहीं सोच रहा था हम सेट पे, लाइक सब लोग जीतने के लिए आए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे, लाइक कोई एक ही जीतेगा, वो सबको भी वो सबको भी पता था. बट वो जो हमारा बॉन्डिंग में अभी तक इफेक्ट नहीं है. हम लोग इतना मस्ती किया, और टॉप 12 भी बहुत इतना मस्ती किया, और जो भी है हम सेट पे ही थिंक कर रहा था, ओके रूम आने के बाद हम एक फैमिली जैसे था. आई थिंक आई मिस एवरीवन वेरी बैडली. आई मिस एवरीवन वेरी बैडली. दिस इज फॉर टॉप 12. Also, of course it must have been. क्योंकि हम बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि
जो मैं कश्मीर से बहुत कुछ कुजिन के बारे में मैं सीखा है, क्योंकि उन लोग हमको सिखाया है नॉर्थ का और मैं साउथ को सिखाया है। ऐसे हम लोग एक एक कुजिन के बारे में हम रिसर्च कर रहा था साथ में मिल के। तो हाँ। मुझे हम लोग ऐसा लाइक कोई भी एक एलिमिनेट होता है तो हम उस दिन पूरा लाइक बहुत मूड ऑफ रहता था, लाइक हम रो रहा था एंड ऑल। सो द फिनाले में सब टॉप 12 आ गया तो मुझे इतना एनर्जी ड्रिंक का पावर मिल गया उस दिन का। तो सब लोग आए थे, लाइक वी हैड अ गुड टाइम एक्चुअली, वी एंजॉयड अ लॉट इन मास्टरशेफ किचन। बहुत कुछ सीखा है, बहुत एंजॉय भी किया है हमने। That's amazing. It's of course आपकी बातों से भी लग रहा है that it must have been a great journey. Yeah. Also, last thing, any advice for young people? I mean, throughout the show आपने already बता दिया है कि follow your passion and don't give up. But apart from that, जैसे आपका failure था, I think a lot of young people, our viewers, might have faced failures in their life, और सब ये दूसरी बार ट्राई करने की they don't have that strength कि वो दूसरी बार ट्राई करे for whatever reasons. So any piece of advice for all the young So people out there? yeah. तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, लाइक हर लोग के लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आता है, तो यू नीड टू यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी। या हाँ, लाइक ऊपर नीचे होता रहता है, डोंट गिव अप। क्योंकि जो मेरा लाइफ में जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी था मास्टर शेफ, तो मेरा जर्नी सबको पता है, मैं कहाँ से कहाँ तक आ गया। तो मेरा जर्नी मतलब एक ऐसा मोमेंट भी आता है, ओके आई विल गिव अप, मेरे से नहीं होगा, तो बट इफ यू स्टिक टू योर पैशन यू विल नेवर गिव अप। तो क्योंकि लाइक कितना आप मेहनत करोगे ना उतना आपको फल मिलेगा, बट थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। तो दैट आई कैन से, क्योंकि या बिकॉज जब मैंने भी वही सोचा था लाइक नो आई हैव टू गिव अप, मुझे नहीं होता, मेरे से नहीं होगा। तो बाद में मुझे पता चला हो कि कुछ एक प्लान को हम ये करेंगे, उसके बाद फल मिलने में टाइम लगता है, बट वो फल या बहुत स्वीट हो तो बट इट विल टेक टाइम। तो मुझे वो जो फल मिल गया, आई थिंक हम थोड़ा पेशेंस रखना है और बहुत फोकस भी रहना है। So I think जो भी passion है, जो parents should support their children. So I think my mom, like after winning MasterChef, my mom regrets. हाँ यार। क्योंकि my mom was like, हाँ I went to my mom and I told my mom, तो आपने बोल रहा था ना नहीं जाने, this time I promised you and I went. बोला हाँ मुझे पता है, okay finally you made it, okay. तो now she is very happy because सब लोग मेरे मुंह में से like आप मास्टर शेफ मोहम्मद आशिक का बेटा, कब किधर भी जाओ एंड कोई भी मिला, आपका बेटा गया है ना, आपका बेटा गया है ना, आपका बेटा गया है ना। सो लाइक शी इज वेरी प्राउड, शी इज वेरी एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो अब सब कुछ सॉर्ट हो गया, तो अभी मेरा एक पैशन से एक पहचान मिल गया, तो यहाँ से अभी मेरा नया जर्नी स्टार्ट होगा। सो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। So good luck for that journey, of course. Thank you so much. And thank you so much for doing this. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So like Ashiq mentioned, for all our young viewers, it's your passion that's going to define you. So never give up on your dreams. And like, comment and subscribe to Daily Salar Digital for more such videos.